Please give a huge round of applause for Honorable HR Zadwar sir, Principal of Sarhad College. Thank you, sir. Good afternoon. It gives me immense pleasure to welcome you all for today's wonderful event by Sarhad College of Arts, Commerce and Science. The title of this wonderful event is Sarhad's Arsh Skill Development Program. To mark the beginning of this program, let's start off with the lighting of the traditional lamp as a symbol of reverence to Goddess of Knowledge, Ma Saraswati. Thank you. We are truly honored by the presence of the dignitaries on the stage today. So moving further, let's have a floral welcome for our dignitaries. May I request Dr. Sangeeta Shinde ma'am to welcome Principal of Sarhad College, Dr. H.R. Zadwar sir. I request Dr. Sangeeta Shinde ma'am to welcome Secretary of Sarhad, Mrs. Sushma Nahar ma'am. Welcome ma'am. Now I request Assistant Professor Sonali Gholve ma'am to welcome Shailesh Wadekar sir, Trustee of Sarhad College. I request Dr. Sangeeta Shinde ma'am to welcome Principal of Sarhad College, Dr. H.R. Zadwar sir. I request Principal of Sarhad College, Zadwar sir, to welcome Trustee Anuj Nahar sir, Trustee of Sarhad, Mr. Anuj Nahar sir. I request Dr. Swati Mane ma'am to give a floral welcome to the Principal of Junior College, Rubina Deshmukh ma'am. In charge of Junior College, Rubina Deshmukh ma'am.
I request Sangeeta Sridhar ma'am to give a floral welcome to Kavita Walkere ma'am, Principal of CBSE School. Now I request Dr. Swati Mani ma'am to kindly welcome yes, Sujata Gore ma'am, Principal of Public School. I request Assistant Professor Preeti Hiware ma'am to welcome Geeta Khote ma'am, Head Accountant of Sarhad. I request Dr. Swati Mani ma'am to give a floral welcome to Pallavi Pasalkar ma'am. Headmistress of the primary section. Most welcome ma'am. I request Assistant Professor Sonali Ghorve ma'am to give a floral welcome to Prerna ma'am. Welcome ma'am. I request Assistant Professor Preeti Hiware ma'am to welcome Sarhad Coordinator Zaid Bhatt sir. I request Sonali ma'am to welcome Javed sir. I request Assistant Professor Sonali Ghorve ma'am to welcome Siraj sir. Thank you. We are glad to meet and educate the Kashmiri girl students who were very curious to learn the language and computer skills. Let me state the main purpose of our skills development program. The main purpose is not only to train the students in language and computer skills, but also to empower them with adequate skill sets with a great knowledge which will instill a great confidence in them. Now, let's take a look at the PPT so that you will come to know about our interesting sessions. I would like to highlight the objective of Language and Soft Skills Development Program.
Our objective was to give proper exposure to the students with various language and soft skills like effective communication and maintaining the right body language, to encourage the students to appreciate the nuances of English language, to instill confidence in the minds of the students through presentation skills, to equip learners with the ability to read and write with understanding, communicate effectively, and to make them use language with ease in different situations. To enable the students to create a curiosity to learn newer aspects of language and to apply the language and soft skills in our day-to-day life. Next slide, please. Well, this is the course structure of language and communication skills which we have designed for the Kashmiri girls. We taught tenses, modal auxiliaries, primary auxiliaries, self-introduction, forms of verbs, resume writing, prepositions, and various orders of word. They were also encouraged to learn vocabulary building. Next slide, please. These are some of the skills taught under soft skills. They include communication, presentation, leadership, interpersonal skills, and professional and creativity skills. May I have the next slide, please? These are the glimpses of our interesting sessions which were conducted at wonderful Guzarwadi campus, and they enjoyed learning. This is the conference room, which is well equipped with LCD, and we had a great time teaching the students. They had a different exposure while learning. This is the presentation by a student. She is presenting the communication skills. Whatever she learned throughout the session was presented in a wonderful manner. Another presentation by a student. Students attending the lectures very attentively. These are the photos which we snapped while they were actually listening to our lectures. Next slide, please. This is the photo of Mehendi competition. Students enjoyed a lot for Mehendi competition. This was not a competition, sorry, this is Mehendi learning session. This is the evaluation test for language skills which was undertaken for the students. A proper question paper for 50 marks was designed for them, and now they are busy solving the question papers, as you can see. Next slide, please. Yes. Next. Another glimpse of wonderful interactive session with the students. We were having a great group discussion. And these are the happy smiling faces enjoying their teaching learning sessions. Yes, our hard work has really paid off, and we have also made the spiral bindings of our notes, and these notes are now to be given to the students. So our hard work will be really paid off if they really use these skills in their day-to-day life. Thank you so much. Yes. So these were some of the glimpses of our teaching at Guzarwadi campus. Now, may I request Assistant Professor Sonali Ghorve ma'am to present the PPT on basic computer skills, please. Good afternoon, everyone. I am Assistant Professor Sonali Ghorve. Welcome all dignitaries, all teaching, non-teaching staff, Kashmiri students, and our Sarhad staff. We conducted the different courses under the Art Skill Development Program 2023-24 for Kashmiri girls. Here is the names of the program: Basic Computer Skills, Language Proficiency, Baking, Chocolate Making, and different workshops for the students. We are the part of the Computer Skills program.
Next slide, please. Shivomi, is there a technical issue? Our course name was Certificate Course in Digitization. Means here we covered all the basic computer skills plus internet skills mainly and video editing skills. The course duration from 4th Jan to 5th Feb. Course conducted by Assistant Professor Sonali Ghule, myself, and Swati Mani. And here is some glimpses of orientation session. Orientation and interaction session conducted by Nahar ma'am and Dr. Sangeeta Shinde ma'am at our campus only. Faculties interacted with the students for general information and discussion for how to start the course, from which point we need to start. And finally, we started the sessions at Guzarwadi campus. We got the actually the student handled the computer first time, so that was challenging for us to tell from how to start the CPU, where is the CPU, how to operate mouse and other parts also. So in first 2 days we faced the problem, but after that smoothly we tried to run the course. सब जो भी यहाँ पे कश्मीरी गर्ल्स यहाँ पे बैठे हैं उनको दिखाई देगा यहाँ पे कि कैसे अच्छे से आपने परफॉर्म किया था और हमने मेमोरीज भी कैच करके रखी थी. उनको बहुत स्टूडेंट को मालूम नहीं था कि ये फोटोज़ ले रहे हैं तो ऐसे प्रेजेंट भी होने वाले. एक्चुअली दे हैविंग द फियर ऑफ कैमरा बिकॉज आई ऑब्जर्व दैट थिंग्स व्हेन आई एम कैप्चरिंग द फोटोज़ एंड वीडियोज़. एट दैट टाइम उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसे क्यों फोटोज़ खींच रहे हैं, हमारे बार बार क्यों खींच रहे हैं. बट द पर्पज इज ओनली टू शो योर इम्प्रूवमेंट. एंड ऑल्सो our Sarhat college took the one camp for the medical checkup under the BSc regular department, and at that time we did the medical checkup of each and every girl. Also we took the sessions at our lab number 4 near the Ganpati Mandir. Student tried very nicely to make the greetings, make the presentations, to create a test. And here is some glimpses of practical sessions. Student enjoy the PowerPoint, Excel, Google Forms. Also our student participated at a Spotlight intercollegiate event. And here we can say this is the outcome of the students. कि स्टूडेंट ने ये डिसाइड किया कि हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टेज पे परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और बहुत अच्छा था उनका परफॉर्मेंस. ये 2 एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. 2 डांस थे अलग अलग, एक कश्मीरी और पहाड़ी. ऑल्सो वी टुक द सेशंस हाउ टू रिकॉर्ड द वीडियोज़. यहाँ पे ये भी बताया गया था उनको खुद का रिकॉर्ड कैसे वीडियो करना है, कैसे अपलोड करना है यूट्यूब पे. उसका यूट्यूब के भी सेशंस लिए गए थे कि यहाँ से भी आप कैसे, मतलब जो अर्निंग है वो घर बैठे भी कैसे हो सकती है, क्योंकि वी एवरीवन नो दैट कि कश्मीर में इतना ब्यूटीफुल नेचर, इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो कैप्चर करके इसका भी एक ऐसा यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये सेशंस लिए गए थे. हियर यू कैन ऑब्जर्व व्हेन आई एम कैप्चरिंग द फोटो एवरीवन हैविंग अ फियर व्हाई दे टेकिंग फ्रीक्वेंटली द फोटोज़. And also we took the exam in the form of practical sessions,
and everyone completed all the assignment very nicely. After all sessions, we have given the different assignment, and all the girls completed very nicely. You can observe in the pictures. Okay, yes, yes sir. सबने जो ग्रीटिंग्स बनाया था, देखो पहले अबिदा का ग्रीटिंग यहाँ पे है, सबने ग्रीटिंग्स बनाए थे. सॉरी गर्ल्स कि मैं सबके फ़ोटो यहाँ पे नहीं डाल पाई क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था इसीलिए, लेकिन बहुत अच्छा सबने बनाया था. और यहाँ पे देखो, इसने तो फर्स्ट टाइम उसके पीसी को इंटरनेट कनेक्ट नहीं था उस दिन, तो वो बोली कि मैम मैं कैसे बना सकती हूँ विदाउट इंटरनेट. लेकिन मैंने ये भी बताया था कि कश्मीर में अगर 2 दिन इंटरनेट नहीं चलेगा तो आप कैसे बनाओगे. तो उसने ये भी ट्राई किया था कि विदाउट इंटरनेट आई कैन डू द वेरी गुड ग्रीटिंग्स. हियर इज सम फीडबैक ऑफ द सेशंस. यहाँ पे हमने क्या किया था कि हर एक चीज़ पेपर पे नहीं अटेंडेंस या फीडबैक हर एक लिया था. उनको बोला था कि गूगल फॉर्म भी, क्योंकि हमें इन फ्यूचर कनेक्ट रहना है, तो गूगल फॉर्म थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. गूगल मीट ये जो है उससे कनेक्ट हो सकते हैं. तो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स कंप्यूटर के ऑनलाइन हुए थे, ऑनलाइन फीडबैक उनका लिया गया था. तो यहाँ पे कुछ मैंने ऐड किए हैं. टेस्ट भी जो लिए थे वो टेस्ट ऑनलाइन ही कंडक्ट किए थे, कंप्यूटर के टेस्ट. बाकी के सेशन के टेस्ट प्रैक्टिकल लिए थे डायरेक्टली कंप्यूटर लैब में. द एम ऑफ टेस्ट इज़ नॉट ओनली टू असेस द स्टूडेंट. सिर्फ हमें ये देखना था कि आपने अभी तक कितना सीखा है. कुछ नहीं आ रहा है तो वो भी हम कवर कर सकते हैं फिर से, इसीलिए ये टेस्ट ली गई थी. बोर्ड चॉक एंड टॉक मेथड भी यहाँ पे यूज़ की थी. ये जो सेशंस है कि यहाँ पे रिवीजन के लिए टाइम दिया था कि मैंने आधा घंटा उनको दिया था कि कुछ भी करो, जो आता है वो करो, वो कंप्यूटर आप यूज़ कर सकते थे. तो इसलिए ये सेशन दिया गया था. एवरीवन वाज बिजी इन दैट. गूगल फॉर्म्स उन्होंने क्रिएट करके उन्होंने खुद भी सर्वेस किए हैं, खुद भी वीडियोस अपलोड भी किए, उसमें भी कंप्यूटर के सर्वेस वगैरह उन्होंने यूज़ किए थे. पावर पॉइंट अच्छे से क्रिएट करके प्रेजेंटेशंस भी दिए थे यहाँ पे कि हमने क्या बनाया है. यहाँ पे वीडियो नहीं डाले, लेकिन सरहद कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम वीडियो डालेंगे कि उन्होंने प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट किया और कैसे सबको प्रेजेंट किया था उस चीज़ के. यहाँ पे हमने ये भी उनको सिखाया है कि अगर 2 महीने के बाद आप कश्मीर चले जाओगे तो हम कैसे ऑनलाइन भी लेक्चर्स ले सकते हैं, कैसे कनेक्ट रह सकते हैं. इसीलिए गूगल मीट यूज़ करके ये सेशंस लिए थे. हाइब्रिड सेशन लिए थे कि कुछ गर्ल्स क्लास में रह गए, कुछ आप घर पे हो, तो कैसे यूज़ करना है, इसके सेशंस उनके लिए लिए गए थे. ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि नाहर मैम ने हर 4-5 सेशन के बाद उनका फॉलोअप लिया है, फीडबैक लिया है कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं. ये सब चीज़ें मैम ने इतनी छोटी छोटी चीज़ें पे वहाँ पे कंसंट्रेट करके इसे देखा था कि किसको क्या प्रॉब्लम है. और हमें भी मैम ने बताया कि मैम इसको ये इस तरह से लेना चाहिए, इसको ये करने से. सो थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतना टाइम दिया इस चीज़ों के लिए. नोट्स कंप्यूटर और इंग्लिश के दोनों के बना के हमने स्टूडेंट को आज देने वाले हैं एक्चुअली. एंड दिस वाज अ यस्टरडे सेशन, कैंप फायर ऑन 4th Feb at Guzarwadi. Student enjoy a lot, and also here also student given the performance. Students given the different performances, and our little ones also given the performance for our Kashmiri girls, for these guest students. Also Gash band given the different performances, and student enjoy the yesterday's campfire. Thank you so much. Thank you ma'am.
मावशी ते बोलत नाही. I welcome the founder president of Sarhad, Honorable Sanjay Nahar sir. I request Principal of Sarhad College, Dr. H.R. Jadhwar sir, to welcome Founder President of Sarhad, Honorable Sanjay Nahar sir. Please give a huge round of applause. Thank you, sir. Your presence is really very delightful and motivating for us. I request Assistant Professor Sonali Ghurve ma'am to welcome Nalavade madam. I request Shinde ma'am to welcome Supervisor of Guzarwadi School, Manisha Wadekar ma'am. Moving further, now it's time for certificate distribution. Actually, we made these certificates, and these certificates are token of appreciation. Grades are properly given on the basis of evaluation tests conducted from time to time by our faculty members. Now I call out the names of the students. I call out Nargis Nazir. Nargis Nazir, will you please come on the stage, please? I request Nahar sir to give her the certificate. Certificate for Sarhad's ASH Skill Development Program. Thank you, Nargis, for your performance. Proper spiral binding. Congratulations, Nargis. This is the certificate of appreciation, a great moment indeed. Thank you, sir. Next, I call upon Rifat Noor. Rifat Noor. Certificate given at the hands of Founder President Sanjay Nahar sir. Heartiest congratulations. We are also giving the spiral binding notes. उम्मीद है आप ये नोट्स भी पढ़ेंगे ज़रूर based on language and computer skills. रिफत के बाद तोयबा जमान, please come on the stage. तोयबा. Heartiest congratulations, Taiba. Next, I call upon Zarifa Banu. Zarifa Banu, please come on the stage.
Next I call upon Yasmin Rubani. Yasmin Rubani, please. Congratulations to each one of you receiving certificates in the hands of Honorable Trustee of Sarhat, Shailesh Wadekar sir, along with the spiral binding. Nasveena Banu. Receiving certificates at the hands of Trustee of Sarhat, Anuj Nahar sir. Congratulations. Congratulations, Nasreena. Abida Banu. May I call upon Abida Banu on the stage, please? Abida Banu. Abida Banu will receive certificate at the hands of Kavita Vankade ma'am, Principal of CBSE School. Spiral binding notes are also being provided. Artists, congratulations. Ikra Akhtar. Please come on the stage. Ikra Akhtar. Congratulations. Hina Akhtar. May I please call upon Hina Akhtar on the stage, please? She will receive certificate at the hands of Dr. Sangeeta Shinde ma'am, Vice Principal of Sarhat College. Heartiest congratulations. Tabassum Yusuf. May I call upon Tabassum Yusuf? Tabassum Yusuf, please. Yes. Receiving certificates at the hand of Head Accountant, Mrs. Geeta Khote ma'am. Next I call upon Tahira Zahur. Tahira Zahur, please come on the stage. Receiving certificate at the hands of Manisha Wadekar ma'am. Congratulations. Sadia Rafiq. I call upon Sadia Rafiq to come on the stage. She is the youngest one of the batch and a very good student as well. Receiving certificate at the hands of Rubina Deshmukh ma'am. Congratulations. Nidha Zaman. Next I call upon Nidha Zaman. Now I call upon Zinat Rashid. Zinat Rashid, please come on the stage. Congratulations. Receiving certificate at the hands of Nalaude ma'am. Next I call upon Shakila Akhtar.
Rifat Akhtar. I call upon Rifat Akhtar to receive her certificate for her good performance. Thank you. I request all the dignitaries to accommodate your seats, please. I call upon all the girls, please come on the stage so that we can have a wonderful photo. सर्टिफिकेट और ट्रॉफी के साथ आप स्टेज पर आ जाएं. I request Nahar sir to share his valuable insights. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा. सिराज भैया भी अंदर आ गए हैं. सरहद का एक टूर निकला था 2003 में, शायद हमारी स्कूल शुरू होने से पहले. तब बड़गाम के एक टीचर ने सरहद पर एक गाना लिखा था. उसका गाने में 2 लाइनें ऐसी थी, कर गए दीवाने वो क्या अंजाम है, हर बच्चे के जुबान पर सरहद का नाम है. ये मोहम्मद शफी कुरैशी ने शायद लिखा था. और उसमें आगे लिखा था, अलीम के नूर से कोई महरूम न रह जाए. तो उसको मैंने पूछा कि ये इसका मतलब क्या है. तो उसने कहा कि एजुकेशन की लाइट जो है उससे कोई दूर न रहे. तो वो मुझे अभी याद आ रही थी. मैं नाम देख रहा था और नाम भी देख रहा था, तो जैसे नूर, नरगिस और मतलब काफ़ी नाम देख रहा था. और हमारे पास एक कोई लड़का था फिरदौस, अभी है. तो मैं वो शेर सुनता था ना, अगर फिरदौस बरोए ज़मी अस्त, हम ही अस्तो हम ही अस्तो हम ही अस्तो. तो मैं सोचता था सारा यहाँ पर है, स्वर्ग भी है, फूल भी है और माहौल भी एक है. तो आज सिराज वैसे ज़्यादा आगे रहता नहीं कभी, लेकिन ये 1-2 महीने में जितना भी टाइम आप आए, उम्र भी मुझे दिख रहा है. तो मैं मजाक से ऐसे बोला था कि अब यहाँ बच्चे सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आएंगे, रहने के लिए आएंगे, लेकिन काम होगा वो वहाँ होगा. तो आरागाम से आप लोग आए, तो आरागाम से सरहद का रिश्ता एक बहुत अच्छा है. काफ़ी लोग मतलब कश्मीर के सारे एरिया से बच्चे आए, लेकिन आरागाम या खासकर बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट का एक अलग से रिश्ता सरहद के साथ बन गया है. तो आप लोग वापस जा रहे हैं, तो ये आपका दूसरा घर है. एक घर होता है मायका, तो कल आपको शादी हो जाएगी तो हो गया ससुर. और ये है आपके मौसी का घर.
तो हमारे यहाँ मराठी में कहावत है, मौसी माँ से ज़्यादा प्यारी होती है। तो आपको ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है और आगे जाने की होड़ में किसी को पीछे नहीं डालना है। नहीं तो बाद में कहोगे कि सर आपने तो कहा था आगे जाओ। कुछ लोग लोगों को पीछे डाल के आगे जाते हैं। हो सके तो सबको लेके आगे जाओ, अगर नहीं हो सके तो किसी को गिरा के आगे नहीं जाना है। 2 मुकाम कम भी मिले हमें, लेकिन हम आगे जाते वक्त किसी को पीछे छोड़ के नहीं जाएंगे। हो सकता है तो सबको लेकर जाएंगे, नहीं हो सकता है तो किसी को छोड़ के पीछे या किसी के ऊपर पैर दे के आगे नहीं जाएंगे। बस बाकी मैं बाहर था तो मैं सिराज भाई से बोल रहा था कि एक विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, और कश्मीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रस्ट की। तो सबको लगता है ये कुछ गड़बड़ होता है। अब यहाँ सोनाली मैम हैं, इनके भाई वहाँ सागर डोईफोड़े सर, आपने नाम भी सुना होगा। और तो जो वहाँ जाते हैं तो वो ये नहीं समझते कि मैं जॉब के लिए आया हूँ, मैं सर्विस के लिए आया हूँ। वो समझते हैं कि कश्मीर के साथ हमारा कुछ रिश्ता है। तो मजाक से आज सुबह एक बात हुई, हमारे चीफ मिनिस्टर से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे कश्मीर में, वैसा करेंगे। मैंने कहा ये सपना मत देखो कि वहाँ जाके हम कुछ करेंगे। ये सपना देखो कि वो जिनका है उनका रहेगा, और वहाँ कश्मीर में अगर महाराष्ट्र के लोग जुड़ गए कश्मीर के साथ तो एक मिरेकल हो सकता है। ऐसा मिरेकल, यहाँ जाहिद भाई बैठा है, अब कितने बार तो हम नाम लेते हैं, शमीमा दीदी यहाँ नहीं है, उनके पीछे हम लोग बोलते हैं आपको पता है शमीमा दीदी क्या है, आपको पता है जाहिद मराठी में बोलता है, आपको पता है सिराज ने क्या किया है। तो सरहद तब बड़ी होगी जब सरहद के साथ जुड़े हुए लोग बड़े होंगे। एक आरागाम बुक विलेज का नाम 50 जगह आता है, अब तो पूरा शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन चर्चाएं बहुत हैं। मुश्ताक दर्दपुरा का वो अपनी तरीके से कोशिश कर रहा है। कभी हमें लगता था कि सबसे गड़बड़ होने की जो पोटेंशियल है 10-12 बच्चों में, उसमें मुश्ताक भी है। तो उसने गड़बड़ की, लेकिन ऐसी गड़बड़ की कि मराठी में कहावत है, तुकाराम महाराज ने कहा था, पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा जाचा लागावा त्रिलोकी झंडा। उसका मतलब ये था कि वो ऐसे जगह जाके काम करे, वो मुश्ताक ने किया। सलीम अभी है क्या? एक बार सलीम आया तो बोल रहा था मैं पास हो गया। मैं बड़ा सलीम के पास 5-6 बार देख के कहा कि आप कैसे पास हो गए? तो जो बच्चा मुझे श्योरली पता था कि पास होगा, वो फेल हो गया। तो फिर मैंने पहला सवाल सलीम से पूछा था कि अगर आप पास हो गए तो फेल कौन हो गया? तो जिसकी याद है आपको शायद, अच्छा वो एक बार मुझे बोला मैं एमकॉम भी हो गया। तो मिलते तो बहुत रहते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि इसकी, मेरे कहने का मतलब एक ही है कि आपके अंदर इंटेलिजेंसी है, आपके अंदर नॉलेज है। मतलब सरस्वती जिसको हम गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, वो तो कश्मीर से जुड़ी हुई है। और हम मिले अगर, जैसे टीचर आए, टीचर को ये नहीं लगा कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनको लगा कि कोई मेरे घर से आया हुआ है, और ये फील वहाँ भी रहे। हम कोशिश करेंगे मिलकर, सारे सपने ये ज़रूरी नहीं कि हमें पूरे करें, आंखें चेंज भी हो जाए, सपने पूरे होने चाहिए। तो यही काम आगे करेंगे। आप जैसे आए तो अगली बार ये टीचर सारे वहाँ भी आने वाले हैं, वो आपके घर में भी आके रहेंगे। तो यहाँ तो हमें वो मौका नहीं मिलता घर में रखने का, यहाँ तो हॉस्टल बन गया, अच्छी बात है। इस रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। जब तक हमारे सांसों में सांस है तब तक याद रहेगा कि हम कहीं पढ़ने के लिए नहीं गए थे, हम कहीं कुछ गेन करने के लिए नहीं गए थे। अभी शैलेश सर से मैं बात कर रहा था फ़ोटो निकालते वक्त, मैंने कहा नॉलेज कम भी मिला तो चलेगा, फ़ोटो पूरे आने चाहिए, मजाक से बोल रहे थे। तो शैलेश सर बोले नहीं आपको पता नहीं, नॉलेज भी मिला है। तो जो आपके पास है वो आप दीजिए, जो हमारे पास है लेकर जाइए। जाते वक्त एक बात याद रखिए कि जो हमारे अंदर कमियां हैं उसको साथ में मत लेकर जाइए, उसको यहीं पर छोड़ के जाइए। आपको जो लगता है अच्छाई है उसको यहाँ से लेकर जाइए, और आपकी अच्छाई तो वैसे भी है, अच्छाई वापस लेकर जाइए। ये रिश्ता मजबूती से आगे रहेगा, मैं इतना ही कहता हूँ। इमोशनल जब टाइम होता है तो बड़ा स्पीच मैं बोला था कि स्पीच ही नहीं करूँगा, लेकिन बाद में ये होता है कि जो नहीं बोलता है ना तो लोगों को लगता है कि इसको बोलना ही नहीं था, इसके अंदर नहीं। और जो बहुत बोलता है, एक नया अभी मार्केटिंग का सिस्टम आया है कि जो बोलता है उसका बिकता है।
तो फिर एक एक्टर ने कहा सिर्फ जो बोलता है नहीं, जो दिखता है उसका भी बिकता है। तो आपके पास जो दिखता है वो भी है, थोड़ा बोलने निकलोगे तो आप पूरी देश पर नहीं दुनिया पर रूल करोगे, और उसमें हम आपके साथ रहेंगे एज अ टीचर, फिलोसोफर, फादर, मम्मी, जो भी जितने भी रिश्ते आप कहोगे उसको सबको लगा देना, हम साथ रहेंगे। और याद रखना, अगर कोई टीचर नहीं आए तो उनको फ़ोन करके बोलना यहाँ आ जाओ। अब तो डर भी नहीं लगेगा ना, पहले कभी कश्मीर से फ़ोन आता तो डरते थे। तो कुछ लोग जब हमें तंग करते हैं ना, तो मैं मजाक से बोलता हूँ जाहिद भाई को, जाहिद भाई इनका जाने का टिकट निकाल दो। बोलता क्यों? मैंने कहा नहीं, इनको आना है कि नहीं वो आप तय करो। लेकिन लोग उसको दूसरा मतलब निकालते कि इतनी अच्छाई वहाँ है, वहाँ जाएंगे तो आने का टिकट हम सोचेंगे कब निकालना है। तो यही रिश्ता मजबूत करेंगे। थोड़ा ज़्यादा बोला, आपको हमारी ब्लेसिंग्स, शुभकामनाएं। ट्रेन से अच्छे जाओ, कोई अगर कोई आपको टॉन्ट मारे, कोई बुरा मारे तो उसको ध्यान मत दो। सिराज के साथ एक किस्सा हुआ था, उतना बोल के मैं रुक जाता हूँ। इधर उकाड़े सर भी, सुनील उकाड़े सर, मैं उनको भी बोलता था कि वो शिकरापुर नाम का एरिया है, वहाँ क्रांतिकारक थे विष्णु गणेश पिंगले, वो उस एरिया से आया करते। तो ये एक सरहद एक कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रहा, ये एक मूवमेंट बन गया, एक कारवा बन गया। तो सिराज भैया को बड़ा गुस्सा आता था लेकिन बोलता नहीं था। और कश्मीरियों को गुस्सा भी आता तब भी नहीं बोलते, प्यार करना होता तब भी नहीं बोलते। हमारे पास एक साकिब भैया था ना, तो उसको मीट नमक होता है ना, नमक, तो उसको नहीं भी अच्छा लगता था घर में, तो उसको पूछा खाना कैसे हुआ? बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, वो खाता कम था, फिर बोलते थे अगर खाते कम हो तो बहुत अच्छा क्यों हुआ? नहीं, बहुत अच्छा हुआ। तो एक बार क्या हुआ, माँ जी ने उसको पूछा आपको मीट चाहिए क्या? तो मराठी में मीट का मतलब होता है नमक। तो उसको लगा मीट, तो अच्छा आपके पास मीट भी बनाते हैं? तो हम तो नॉनवेज थे। तो वो इतनी खुशी से देख रहा था, आपको मीट बनाते? तो माँ जी ने कहा मीट का मतलब नमक है, नमक। तो बोलते नहीं, बहुत खाना बहुत अच्छा है। एक बार सिराज भैया गया एक टीचर के पास, तो एक रूल होता है 15 साल जो महाराष्ट्र में रहा है उसको डोमिसाइल माना जाता है, उससे आउट ऑफ स्टेट की फीस डबल नहीं ली जाती। तो वैसे भी फीस देने की हमारी दिक्कत ही होती थी दोनों साइड से। और वो गया प्रिंसिपल, अब मैं नाम बोलना ठीक नहीं, तो वो गया और मैंने प्रिंसिपल को फ़ोन किया कि हमें मदद कुछ नहीं चाहिए, जो एज पर रूल है उसमें फीस लेनी है नॉर्मल, वो आप लीजिए, थोड़ी मदद इतनी चाहिए 2 किस्तों में दे दो। अच्छा, मैंने जगाया, वो सोए थे, शायद जब ये नहीं मिलता तो नॉर्मल फीस में हो जाता है, इसको 1 टाइम भरते तो हम 2 किस्तें मांग रहे थे। और मैंने कहा कश्मीरी है, बड़ा इसकी तारीफ़ की। तो तारीफ़ सुन के 3-4 घंटे उन्होंने इसको अंदर ही नहीं लिया। तो मैं सिराज भाई को बोलता था, सिराज भाई क्या हुआ? बोलता बाहर ही खड़ा हूँ। अच्छा, ये 1 बजा था, तो मैं इसको बोलता था खाना नहीं सर, वो मैम चली जाएगी। और सिराज तब से सिंसियर था ना बहुत, तो वो मैम ने अंदर खाना खाया भी होगा, वो बाहर खड़ा ही है। 4 बज गए, मैंने कहा खाना नहीं खाया आपने, यहीं पर खड़े हो? तो नहीं, पता नहीं क्यों छोड़ा। अच्छा, वो मैम ने इसके साथ बिहेवियर ठीक नहीं किया। तो मैंने पूछा आपको गुस्सा आया होगा? तो सिराज ने सच में बोला सर आया है। कितना आया है? तो अगर बहुत गुस्सा आया तो इतने बड़े आदमी बनो कि जो आपको बाहर खड़ा करेगा उसको आप कभी बाहर खड़ा मत करना, उसको शर्म आनी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि मैंने जिसको बाहर खड़ा किया था। हिस्ट्री तभी बनती है, आप बुक्स लिखोगे। अब ये देना ठीक है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अब्राहम लिंकन का एक ऊपर पोर्ट्रेट मैं आपको देता हूँ। उसमें एक ही प्रॉब्लम है, वो हर जिंदगी में हर बार फेल हो गया और एंड में अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। मेरी ये प्रॉब्लम हो गई, जब 10वीं के बच्चों का वो था ना स्टैंड ऑफ के क्या रहता है, क्या है, तो वो मैं देने वाला था। तो मैम ने कहा सर ये इनकी एग्जाम भी नहीं हो गई, आपको इनको फेल होने का दे रहे। तो वो मैंने कैंसिल कर दिया, लेकिन वो मैं आपको आज दे दूंगा, वो सिराज भाई देगा। उसमें अब्राहम लिंकन ने वाचलन थी, उसमें सिर्फ लिखा है कि फेल कब कब हुआ। एंड का पढ़ने तक किसी को पेशेंस रहे, बाद में पता चलता कि प्रेसिडेंट हुआ। तो आधे लोग पढ़ के बोलते यार ये तो फेल होने का दे रहे हैं हमें स्कूल में। तो वो मैं आपको इसलिए दूंगा कि क्या लेवल का डेडिकेशन होता है, क्या लेवल का डिवोशन होता है। और वो चींटी की कहावत हमें कहा जाती थी ना कि वो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये कश्मीरियों के पास सारा है, लेकिन मजाक से हम कहते थे ये लेट भी आते और फर्स्ट भी आते हैं। सिर्फ कंसिस्टेंसी रखो, वो उसकी थोड़ी कमी है आपके पास, वो बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल कंडीशन। यहाँ पे ताना नहीं है। वहाँ 6 महीने बर्फ होता था, अब तो थोड़े रास्ते खुलने शुरू हो गए। 6-8 महीने
करगिल में तो 8 महीने कोई बाहर ही नहीं आ सकता। तो 8 महीने अगर घर में रहोगे तो नेचुरली आपके ऊपर जो असर होता है तो वो रहा। ऋषि मुनि सबको बड़ी क्रेज रहती थी कश्मीर की, ये आते थे तपस्या करने के लिए कश्मीर, अब लोग घूमने के लिए आते हैं। तो हम मिलकर ऐसा कुछ करेंगे। आप तो वैसे बच्चे हैं, थोड़ा ज़्यादा ही मांग लिया आपसे, लेकिन वो अब्राहम लिंकन का एक लेटर भी है, वो देखता हूँ मैं मिलता है कि नहीं। वो टीचर को अपने बेटे के बारे में लिखता है, होतं ना ते अब्राहम लिंकनचे हां वडिलांना पत्र काहीतरी होतं। तो चलो बहुत टाइम लिया, आपको आशीर्वाद शुभकामनाएं। और कल जा रहे हैं परसों जा रहे हैं? 8 ट्रेन की टिकटें है सारू, रिजर्वेशन है क्या पूरा? है ना पूरा? कौन कौन देख रहा है? मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, चेयर है या पूरा है? फिर ठीक है, तो आगे का भी ठीक रहो, संपर्क में रहो। थैंक यू। Respected faculties on the dais, of the dais, आत्ताच नार सरांनी आपल्याला खूप बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है आप सबको कि आपको आगे भी ये पढ़ाई लिखाई और कम्युनिकेशन अच्छा रखना है। लेकिन ये सब करने के लिए जो टीचर्स ने आपके साथ पूरा महीना काम किया है तो उनका भी फेलिसिटेशन हम नाहर सर के हाथों से करना चाहते हैं। पहले मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर अनुपमा वटकर मैडम को। थैंक यू मैम, बहुत लगन से उन्होंने पढ़ाया है बच्चों को। दूसरा मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर स्वाति माने मैम को। थैंक यू मैम। बच्चों की ज़रूरत समझ के उन्होंने अपने कोर्स में तब्दीलियाँ लाई थी। थैंक यू मैम। तीसरा मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर सोनाली गोड़वे मैम को। डिजिटल वर्ल्ड क्या होता है और उसमें हम कैसे तरक्की कर सकते हैं ये उन्होंने बच्चों को सिखाया है। थैंक यू सोनाली मैम। अब मैं बुलाना चाहूँगी प्रीति हिवाड़े मैम को जिन्होंने सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन स्किल सिखाया है। थैंक यू प्रीति मैम। थैंक यू नार सर। अनुपम
so much, sir. It was really wonderful to have you for our event today. Now it's the time for wonderful feedback. May I call upon Assistant Professor Preeti Hiware ma'am to please share her feedback regarding the soft skills. Good afternoon, everyone. Respected dais, all my HODs, colleagues, and dear students, thank you for giving me this opportunity to share the feedback with you. जब ये कश्मीरी लड़कियाँ कश्मीर से आई थी 1 महीने पहले और हमारा इंटरेक्शन सेशन उनके साथ हुआ और उसमें हमको पता चला कि हम लोगों ने कितना अपना भी आउटपुट उनको देना है और जो लड़कियाँ आई थी उसमें से बहुत कम लड़कियाँ ऐसी थी कि जो ऑलरेडी ग्रूम्ड थी लेकिन उनको और हमको ब्रशअप करना था। ऐसी भी लड़कियाँ थी जिनके पीछे हम लोग को ज़ीरो से स्टार्ट करना था। बट थैंक यू मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोग उस पर उनके लिए काम कर पाए। कुछ लड़कियाँ हैं जो बहुत अच्छी तरह से पूरी तरह से तैयार हुई हमारे लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इकरा लड़की है जो क्लास में बिल्कुल भी पार्टिसिपेटिव नहीं होती थी, बिल्कुल भी ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ उसका नाम लेने के लिए मैम, क्योंकि वो उस दिन जब हम लोगों ने उसका प्रैक्टिकल लिया और शी वॉज द वन, उसका जो प्रेजेंटेशन था इतना अच्छा हुआ, तो दैट वॉज द आउटकम फॉर मी कि उसने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन वहाँ पे हमको दिया। थैंक यू मैम एंड रिक्वेस्टिंग यू कि हमको और ये अपॉर्चुनिटी मिले कि हम और लड़कियों को सिखा पाए और अपना 100% उनको दे पाए। थैंक यू सो मच। Now I call upon Dr. Swati Mane ma'am to share her experiences. Good afternoon, all dignitaries on the dais, all staff members, and my dear students. First, I would like to thank Sarhad and Ash for making me as a part of skill development program. We have conducted 2 certificate courses of 1 month duration, and out of which Sonali ma'am and I have conducted digitization certificate course from Department of Computer Science. We have started from what do you mean by computer? Like these are the parts of computer, or how to start the computer. So वहाँ पे क्या होता था कि मैंने पहले उनको पूछा था कि डू यू नो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और आपको पता ही नहीं है क्या है, तो उन्होंने बोला मुझे कि इनपुट डिवाइसेस कौन से है, आउटपुट कौन सा है। तो उसके बाद क्या होता था, सोनाली मैम ने जैसे कहा कि एक दो दिन पहले जो थे ना, 2-3 दिन, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि हम लोगों के लिए वो नए स्टूडेंट थे, उन लोगों के लिए कि हम भी नए थे। तो माउस ऑपरेट करते वक्त वो ऐसे बोलते थे कि मैम देखो ना ये हिल ही नहीं रहा है, ड्रैग कैसे करना है, ऐसे बोलते थे वो। और मैं जब जाती थी तो सुनो रुको ऐसे करो, ऐसे आपके हाथ से कैसे होता है, हमारे हाथ से क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे सो लाइक दैट। सो दे हैव स्टार्टेड एंड आफ्टर दैट उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दे हैव कंप्लीटेड ऑल असाइनमेंट्स, all tasks which was allotted to them. They have given presentations on communication skill. They have performed all tasks regarding PowerPoint presentation, Microsoft Word, then Excel. उसके बाद हम लोगों ने सोनाली मैम ने उनका गूगल फॉर्म लिया, हाउ टू अटेंड द ऑनलाइन क्लास यूजिंग गूगल मीट, वो भी कंप्लीट किया है। सो एक्चुअली लास्ट ईयर वी विजिटेड कश्मीर and we saw how Sarhad is doing work over there, and at that time we got motivated. Means Sonali ma'am and I have decided we have to do something. Means उसका 5% भी हो तो चलेगा, लेकिन कुछ तो हमें करना है, and luckily we got this opportunity, and we gave our 100% best, and thank you so much. And I request Nahar ma'am, every time it is not possible to conduct the offline sessions, so we are interested to conduct the online sessions. So if possible, we will arrange the Google Meets and we can conduct the various sessions through Google Meet. So every staff member from Sarhad College, they are interested to take various sessions, various workshops, and we are ready for that. We are waiting for an opportunity.
So on behalf of Sarhad College, I want to thank Sarhad. I want to thank especially Nahar ma'am for giving me this opportunity. And in future, we are ready to organize such a type of courses. So with this, I will take your leave and thank you for giving me the opportunity to share my feedback here. Thank you. आप लोगों ने इतने बढ़िया फीडबैक सुन लिए हैं, अपने बारे में आपने अपनी प्रोग्रेस भी सुन ली है, तो टीचर्स ने अपना कहना आप तक पहुंचाया है. आप में से कोई यहाँ पे आके अपना फीडबैक दे. यस, सो प्लीज वेलकम रिफत नूर. Respected Nahar ma'am and my dignitaries and my dear friends, a very good afternoon to all of you. Thank you so much for giving me this opportunity, and it's my pleasure to introduce myself in front of you. I am Rifat Noor from Kashmir district Shopian. I am standard of class 2nd year BA from Amar Singh College, Srinagar. Thank you so much. Thank you so much Nahar ma'am and my teachers like Dr. Anupa ma'am, Preeti ma'am, Swati ma'am. They teach us very well. They help to us learning new things from here. At the end, thank you so much Siraj sir and Zaid sir. They bring us to here. Thank you so much. Thanks again. Good afternoon. Good afternoon. I am Toiba Zaman from Kashmir, Bandipora. I am thankful to Sarhad giving me this opportunity to learn new languages, skills, English communication and computer skills. And also thankful to Nahar sir and Nahar ma'am, founder of Sarhad organization. Also thankful to Zahid sir and Saraj sir. Preeti ma'am teaches us English communication, and she is a good teacher. Us excellent knowledge about language skills. Dr. Anupama Watkar, who teaches English communication, also teaches her is so good. Sonali ma'am and Swati ma'am are also a good teacher. She is an experienced teacher. All staff provides good training. It is best institute for freshers and experienced. All staff is very helpful and careful. Also staff is supportive. Teaching and non-teaching staff are very helpful. Thank you to Moshid and Kakas who take care time to time, and I am also thankful to Sarha. Thank you. My name is Shakil. Good morning, everyone. Good afternoon, everyone. My name is Shakila Akhtar. I am from district Rajouri. I am from student BA 2nd year from Amar Singh College. Thank you so much for giving me this opportunity to share my feedback in front of you. Thank you so much, dear Nahar ma'am and Nahar sir and all my teachers. They provide us such a good facility like communication skill, computer skill and everything. When I was came Sarhad hostel, there was very beautiful environment. I very comfortable there and safe drinking water. Everyone care us, Moshi and driver uncle, everyone. And thank you so much dear Nahar. Thank you so much Saraj sir and Zahid sir and Tahira ma'am. Thank you from the core of my heart. And thank you Preeti ma'am, Sonali ma'am, Swati ma'am and Anupama ma'am. They provide us such a good facility. I understand very well. So thank you so much from the core of my heart.
आपको अपना फीडबैक दिल से देना है, सो लैंग्वेज डज नॉट मैटर। आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं। यस, इट्स अ इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन है और ये एक मौका है कि आप अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करें। यहाँ पे आप आके बोलें, आपका यहाँ पे आके बोलना ही हमारा पूरा 100% फुलफिलमेंट है। ज़रूरी नहीं कि अच्छा ही बोले, कुछ चीज़ें अगर आपको शेयर करनी है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ फील कंफर्टेबल to communicate in your language. We are eager to listen from you. अबिदा, क्या आप बोलना चाहेंगे? तबस्सुम है, अबिदा है, निधा, जीनत. Okay. Abida will share her views. Good afternoon, everyone. I am Abida Altaf from Kashmir, district Bandipora. I am thankful to Sarhad, Nahar sir and Nahar ma'am, and our teachers. Thank you to all our teachers. Thanks for your hard work on us. Thank you, Sarhad. May I call upon तबस्सुम प्लीज़? आप हिंदी में भी अच्छे से बात करती हैं, आपने काफ़ी हिंदी सीख ली है वैसे। तबस्सुम, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। ओके। सारे स्टूडेंट्स का जो बहुत देखभाल करती थी आपकी ताहिरा दीदी, उनसे कुछ सुनने के लिए हम लोग चाहेंगे ज़रूर। Yes. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम ताहिरा है और मैं यहाँ पे इन गर्ल्स के साथ हूँ। मैं थैंक्स करना चाहूँगी नहर मैम का, नहर सर का और जितने भी सारे टीचर्स हैं जिन्होंने इतनी अच्छी स्किल सिखाई है हमारे बच्चों को, जिनको कुछ भी आता नहीं था या ज़ीरो से सिखाना पड़ा, तो वो आज कुछ लेके जा रहे हैं, तो हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं। तो जितने भी सारे टीचर्स हैं, हमारे सारे जो हमें हॉस्टल में जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, हमें खेलने के लिए दिया गया, खाने पीने के लिए सब कुछ हमारी बहुत अच्छे से केयर की गई है। और जितना भी हम थैंक्स करें सरहद का, मैम का, सारे टीचर्स का, वो बहुत कम है। तो हम चाहेंगे कि हमेशा और इससे आगे भी जब हम आएँ, हम चाहेंगे कि हम आएँ, हमारे बच्चे आएँ, वो यहाँ से कुछ सीख के जाएँ और वहाँ पे सबको बोलें कि जो सरहद ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे अपना बेस्ट देती है और हमें भी कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए इसके लिए, ताकि जो सर ने भी बोला कि जो हमारा रिलेशन है कश्मीर के साथ और महाराष्ट्र के साथ वो बहुत अच्छा बने और हम उसको बनाने की कोशिश भी करें। तो हम शुक्रगुजार हैं सर सबका, स्पेशली मैम का। मैम ने हर छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान दे के कैसे पढ़ाना है, कैसे स्टार्ट करना है। सबसे बड़ी बात होती है कंफर्टेबल करना, एक स्टूडेंट को कैसे कंफर्टेबल फील करवाया जाए। जैसे कोई बोल नहीं पाता है तो उनको आज यहाँ तक लाने में सबने मदद की है और अपना सबने अपना बेस्ट दिया है। मैम ने सही बोला था, इकरा कभी किसी से बात नहीं करती थी और वो आज अच्छे से बात कर रही है। इवन सारी जो हैं वो पहले बहुत अनकंफर्टेबल रहती थी, लेकिन आज जब हम जा रहे हैं तो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं कि नहीं, अब हम बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी टास्क हो, कोई भी काम हो, हम अच्छे से निभा सकते हैं। तो ये सब ये जो जितना भी है ये आप सबकी मेहनत है, तो इसके लिए मैं थैंक यू करूँगी सबका। और हम चाहूँगी कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स हों और बच्चे आएँ और सब कुछ सीख के जाएँ। थैंक यू सो मच। Now I request Sarhad coordinator Zaid Bhatt sir to share his feelings, please. कविता मॅडमला टेन्शन आला, कारण त्यांना माहिती मी 45 मिनिटं बोलणार आहे। नमस्कार, ऑनरेबल डिग्निटरीज ऑन डायस,
और मेरे सामने बैठे हमारे क्लिक और सारे स्टूडेंट्स, हमने जब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की थी आज से 1 साल पहले, हमने महादेव गोडबोले जी के ऊपर एक लेक्चर रखा था। उसमें आए थे खुर्शीद अहमद गनाई जम्मू कश्मीर के। तो स्पीच उनका सब लेक्चर होने के बाद हम पीए इनामदार सर के यहाँ विजिट करने के लिए गए। तो उन्होंने कहा कि हम 1.5 साल से ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रहे हैं जहाँ पूरे इंडिया भर से लोग आते हैं। तो उन्होंने हमें प्रस्ताव रखा कि आप ऐसे ऐसे कुछ बच्चों को लेके आइए, खासकर गर्ल्स को, तो वो यहाँ पे आके सीखेंगे। तो हमने पहला जो बैच था हमने 20 लोगों का लेके आए। सिराज साहब है बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे कोऑर्डिनेट किया था। तो पहले हमें खुद भी पता नहीं चल रहा था, इवन वो भी कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो ये हमें खुद भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन हमने कोशिश की। वहाँ पे पेरेंट्स को बहुत मोटिवेट करना पड़ता है। वहाँ पे जाके घर घर में बात की, हर पेरेंट्स से बात की, गर्ल्स से बात की, उनके रिलेटिव्स से बात की। तो उन्होंने फिर बोला कहाँ जा रहे, कैसे जा रहे, क्या कर रहे हैं। बहुत सारे तब इश्यूज चल रहे थे, तो ये प्रोग्राम करना था। तो करते करते 20 लोगों की सिलेक्शन हो गई और 20 लोगों का बैच यहाँ गए साल आया। आजम कैंपस में था, उन्होंने वो 2 महीने के कोर्स उनको किए, सर्टिफिकेट दिए, सब हो गया। इस साल की स्पेशलिटी मैं बताता हूँ क्या हो गई। इस साल जब सिलेक्शन हो गया, गर्ल्स आ गए, तो हमने फिर से इनको आजम कैंपस में भेज दिया। तो इनको वहाँ पसंद नहीं आया, इन्होंने कहा हम यहाँ नहीं रहेंगे। उसका रीज़न ये था कि इनको गुजरवाड़ी का हॉस्टल बहुत पसंद आया था। तो इन्होंने वहाँ जाके बोला कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें वही रहना है, आप हमें वापस लेके जाइए। फिर हमने मैडम से बात की, शिंदे मैम भी है, तो ये हमारे टीचर्स ये सब तैयार हो गए। बोला सर हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे ले लेंगे, हमारे ये कोर्सेस है। अब मैडम ने तो एक बुक ही दे दी, हमें तो उतना कुछ समझता नहीं है उसमें से। हमने इनको ही कहा कि इसमें क्या कर सकते हो, आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने बोला कि 1 महीने का ये कोर्स है, ये हम कर सकते हैं। तो ये डेलीगेशन मैडम ने दिखाया, आप सब ने दिखाया। उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, हम 16 नहीं, हम 60, 70, 120, 200 लोगों को भी अगर लाएंगे तो हमारा डिपार्टमेंट हमारे साथ है, वो उनको सिखाएंगे। तो ये एक उस टाइम मुझे कॉन्फिडेंस आया। तो अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं। कल सोनाली मैम ने भी कहा 16 नहीं 1600 लेके आइए, हम पढ़ा लेंगे, तो कोई मुश्किल नहीं मैम। आगे आगे ये बढ़ता रहेगा और हम इसमें काम करते रहेंगे और अपॉर्चुनिटी देंगे। कश्मीरी में एक वो 2 लाइन कहे हैं, कहते हैं अश्तो किताब मुसरत लफ्जन छुफ्यूर बासान फिल कम कम गंदर ना तो दुनिया बेदारा से। यानी जब जब हम इल्म की तरफ बढ़ते हैं तब तब दुनिया में ज़्यादा रोशनी हो जाती है। तो हमने वो किताब खोल के रखी है, अब उसमें से लोग आके रोशनी लेके जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Now I request Shailesh Wadekar sir to motivate us. सरहद संस्था के सह संस्थापिका नाहर मैम, स्टेज पे बैठे हुए सभी रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज और मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले तो स्किल डेवलपमेंट का ये जो प्रोग्राम चालू किया है, इसके लिए मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो भी लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, स्पेसिफिकली सीनियर कॉलेज के शिंदे मैम, माने मैम और बाकी सभी टीम का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ऐन मौके पे ये कार्यक्रम सरहद के तरफ से एग्जीक्यूट करने का तय हुआ था और उसके हिसाब से इमीडिएटली उन्होंने रिस्पांस दिया और सभी टीचर्स ने उनका रेगुलर काम करते हुए इसमें कोई मतलब आनाकानी किए बगैर ही सब अच्छा एग्जीक्यूट हुआ। तो इन सब का मैं शुक्रिया करता हूँ। और जो पार्टिसिपेंट यहाँ पे आए हैं वो लोगों का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि कश्मीर में घर से निकलना है और यहाँ आके कुछ पढ़ना है तो हमारे जैसा यहाँ नॉर्मल हालत नहीं रहता है। आपको बहुत सारे हार्डल्स को पार करना पड़ता है। अभी जाहिद भैया ने बताया कि वहाँ घर से बाहर निकलना है तो
हर घर जाके बात करनी पड़ती है, क्योंकि एम क्या है, कहाँ जा रहे हैं, इतना मालूम नहीं रहता है। तो वो कॉन्फिडेंस वाला जो माहौल क्रिएट करना पड़ता है कोई भी प्रोग्राम के लिए, उसके लिए भी सिराज और जाहिद, मुझे लगता है सिराज ने हर घर में जाके और उनकी मैम ने भी, ये लोगों ने घर जाके सरहद के बारे में जो कॉन्फिडेंस क्रिएट किया, इसलिए हमारी ये बहनें यहाँ पे आ पाई है। तो मुझे लगता है कोई माहौल क्रिएट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। हर सिचुएशन का सर्कमस्टेंसेस हमेशा सेम नहीं होता है, तो हर सिचुएशन के हिसाब से वहाँ माहौल बनाना पड़ता है, और वो माहौल के हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो हमें डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलता है। मुझे ये लगता है अभी ये शुरुआत हुई है, नाहर सर ने जो बताया है वही लाइन पे हम सब लोगों को काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बस अभी शुरुआत है। हाउ वी स्टार्टेड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ वी फिनिश इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये शुरुआत हुई है स्किल डेवलपमेंट के। मैंने प्रेजेंटेशन देखा, ये चीज़ें आप अभी सीख रहे हैं, लेकिन अगर इसका, मैं हमेशा मानता हूँ कि कोई भी चीज़ हमें न्यूज़ के लिए नहीं करनी है, कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसके वैल्यू एडिशंस हमारे लाइफ में होने चाहिए, और ये वैल्यू एडिशंस तभी बन सकते हैं जो हमने अभी ये फॉलोअप लिया है, इसका फॉलोअप होना चाहिए जो हमने किया है, और उसका बाद में फॉलो थ्रू भी होना चाहिए। मतलब आपने जो सीखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम जिस दिन हमारे पूरे लाइफ में करेंगे, तभी आपका करियर के हिसाब से आपको उसका फ़ायदा होगा। और यहाँ पे सभी जो टीचर्स हैं उन्होंने भी बताया कि वो ऑनलाइन भी सिखाने को तैयार है और ऑफलाइन भी सिखाने को तैयार। ऑफलाइन में तो बहुत सारे चैलेंजेस है, डिस्टेंस का भी मामला है, लेकिन अगर हमारा प्लानिंग परफेक्ट है और आप सभी लोग हमारे साथ हैं, तो आप ये सभी जो चीज़ें सीखी है, आपने स्पाइरल बाइंडिंग में भी आपको पूरा कोर्स दिया है, लेकिन अगर उसका आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़े दिन बाद क्या होगा, वो भूल जाएंगे। तो हम यहाँ किस पर्पज से आए कि ये सीखने के बाद हमारे लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए, बराबर। तो उसके लिए हमें ऑनलाइन सेशंस भी लेना है। नाहर मैम ने जिस तरह से इसका प्लानिंग किया है, मैम को कोई भी चीज़ करते हैं तो उनको दिल से करने में पसंद है, उनको सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। ये प्रोग्राम आपका जो है, ये हमें भी एक मोटिवेशन मिला है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको डिलीवर करनी है तो उसके लिए आपका वहाँ पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। बचपन में एक लड़का था जो थोड़ा सा समझने में और उसको पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर था। तो हर बार क्या होता था, स्कूल में उसको समझने की बजाय उसके बारे में बहुत सारे कंप्लेंट्स हुआ करते थे, और वो लड़के को सिखाने के लिए स्कूल भी रेडी नहीं था और टीचर्स भी रेडी नहीं थे। एक दिन ऐसी नौबत आ गई कि स्कूल ने उनको बताया कि हम इसको पढ़ा नहीं सकते हैं, आप उसको कहीं और जगह पे जाके पढ़ाओ। तब वो टीचर ने, प्रिंसिपल ने, वो एक लेटर दिया था उनको, और उनको बताया कि ये लेटर आप अपने मम्मी को दिखाओ। जब उनके मम्मी ने वो पढ़ा तो उसमें बहुत सारी निगेटिव चीज़ें लिखी थी, और उसमें ऐसे कहा था कि आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता है, इसीलिए आप उसका कोई और इंतज़ाम कीजिए। लेकिन जब बच्चे ने पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है, तो उसने माँ ने उनको कहा कि बेटा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि आप इतने होशियार हो कि आपके लेवल से सिखाने की वहाँ पे कोई भी टीचर नहीं है, तो आपके लिए बढ़िया टीचर की ज़रूरत है और आपको हम पढ़ाएंगे, तो आप कोई बात चिंता मत करो, हम आपको इससे भी अच्छे स्कूल में मैं आपको पढ़ाऊंगी। और वो लेडी ने फिर जो स्ट्रगल किया, और उसके बाद वो बच्चा आगे बड़ा होके एक बड़ा साइंटिस्ट बना, और उस साइंटिस्ट का नाम था अल्वा एडिसन। तो कोई भी आपको अगर कुछ चीज़ें क्रिएट करनी है तो उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल चीज़ें तो सभी करते हैं। तो वो यकीन जो था वो बच्चे के बारे में, वो माँ में था, और वो माँ के दिल में वो यकीन था, इसीलिए वो कर पाई। अगर उनके दिल में वो यकीन नहीं होता तो वो कभी भी वो रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाते। तो हम कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं तो उसके सक्सेस का, उसके डिलीवरी का हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तो भी उसका 100% उसके ऊपर कोशिश करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। तो मुझे बहुत सारा यकीन है ये स्किल डेवलपमेंट का काम है। नाहर मैम ने आज के साथ कश्मीर के बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं,
उनके लिए ये प्रोजेक्ट्स की बहुत सारी ज़रूरत है और मुझे आशा है कि सरहद के माध्यम से इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे कोशिशें होगी और हम सब उसमें साथ देंगे और काम करेंगे। आपने यहाँ पे आए, हमारा ये रिश्ता हमेशा अच्छा रहेगा और आगे भी इंशाल्लाह हम और अच्छा करेंगे। आप सभी लोगों को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारे आभार। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Your words are truly great encouragement for us. Now I request Principal of Sarhad College, Dr. Zadwar sir, to share his views, please. सरहद संस्था के सेक्रेटरी नाहर मैम, ट्रस्टीज वाडेकर सर, सरहद कॉलेज के सारे टीचर्स, वाइस प्रिंसिपल मैम और जिन्होंने इस कश्मीरी लड़कियों का यह क्लास बहुत ही अच्छी तरह से सिखाकर उनको एक नया संदेश दिया है। हमारी सरहद संस्था जो है, नाहर सर और नाहर मैडम का पहले से ही विचारधारा रही है कि हमारा भारतीय सारा समाज, पूरा राष्ट्र एक बने। राष्ट्रीय एकता के लिए रात दिन काम करने वाले नाहर सर, जिन्होंने अभी बहुत अच्छा भाषण दिया लेकिन हमारा भाषण सुनने के लिए नहीं रुके, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। वाडेकर सर जो ट्रस्टीज है वो हमेशा के लिए पॉजिटिव ही सोचते रहते हैं कि अच्छा माहौल कैसा, ये सोचते नहीं अच्छा है बुरा है ठीक है, ये भी सोचते नहीं। अच्छा से अच्छा काम कैसा होना चाहिए, इसके लिए हमेशा के लिए पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले वाडेकर सर है। अनुज नाहर जो अभी कार्यभार संभाल रहा है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से और कम से कम बातें करता है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है। यहाँ कोई भी संस्था, कोई भी क्रांतिकारी काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी प्रेरणा एक विशिष्ट विचारधारा से प्रेरित होती है, तभी वो सभी काम करते हैं। यहाँ पर अभी आप लोगों को कंप्यूटर की शिक्षा दी है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी और हमारे संस्था की भी एक इच्छा है कि कंप्यूटर जैसे हम आपको सिखाए, वैसे ही हम लोग आपको राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रेम ही आपको सिखाएंगे। अगली बार में जो प्रोग्राम होगा, इसमें राष्ट्रभक्ति के ऊपर, हमारे देश की जो शहीदी परंपरा रही है उसके ऊपर ही आपको जानकारी दी जाएगी। हमारी संस्था राष्ट्रीय एकता के लिए काम करती है और ये करती रहेगी। आप यहाँ पर सभी लड़कियाँ आई और आपने कंप्यूटर का नॉलेज ग्रहण किया। अभी एजुकेशन प्रणाली में एक ऐसी सिस्टम बनती जा रही है कि कंप्यूटर और मोबाइल, सारे बच्चे बच्चियां, नौजवान, बूढ़े सारे कंप्यूटर में खोए हुए हैं, मोबाइल में खोए हुए हैं। इसलिए मैंने एक कविता में ऐसा कहा है, मेरे अपने देश में कंप्यूटर की सेज है, कंप्यूटर की सेज है, मेरे अपने लोगों की
मुझे ही खोज है। सारे बालक सुस्त है, सारे देश के पालक अस्वस्थ है। आप लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत अच्छी तरह से नॉलेज प्राप्त किया है। इसका सारा श्रेय नाहर मैडम को जाता है, नाहर सर को जाता है। उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ देवटनकर मैडम, गोले मैडम, संगीता शिंदे मैडम, जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही कष्ट उठा के आपको नॉलेज देने की कोशिश की है। मैं हमेशा के लिए कहता आया हूँ, यहाँ परिपूर्ण केवल ईश्वर अल्लाह है, संपूर्ण जगत अपूर्ण है। लेकिन हम पूर्ण कैसे बने, हम पूर्णत्व की ओर कैसे चले, यह हमेशा के लिए सारे इंसान कोशिश करते रहते हैं। सरहद संस्था की ओर से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हम मिले ही ऐसे थे, कभी जुदा न थे। इस प्रकार हमारी भावना सरहद की भावना है और हम आपको हमेशा के लिए अलग अलग कार्यक्रम को यहाँ बुलाते रहेंगे। जाहिद जो हमारा सबका लाडला है, जो हमेशा के लिए सरहद के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए काम करता रहता है, उनके दिमाग में भी अलग अलग प्रकार की खोज रहती है कि कश्मीर के लिए, सरहद के लिए और राष्ट्र के लिए परिपूर्ण बनने के लिए हम क्या क्या सोचें, वो हमेशा के लिए सोचता रहता है। वो अच्छी तरह से मराठी बोल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। वो कश्मीरी अच्छी बातें करता है, शेर शायरी करता है, हिंदी में बहुत अच्छी बातें करता है। तो हम जाहिद भट्ट से इतना ही सीखे कि वो अलग अलग प्रकार की भाषाएं कैसा अच्छी तरह से बोल रहा है। तो हम लोग जितने भी यहाँ पर लड़की आए हैं, वो हिंदी और उर्दू बहुत अच्छी तरह से अगले प्रोग्राम में आने के बाद बोले। या डरने की बात नहीं है, ये सारे हमारे ही लोग हैं। नाहर सर ने बोला कि मौसी का घर है, मौसी का घर सबसे प्यारा घर होता है, माँ से भी ज़्यादा प्यार करने वाली होती है मौसी। तो यहाँ पर मौसी का घर है और नाहर सर मौसी से बढ़कर भी बड़े बहुत काका है, अंकल है। तो सभी लड़कियां जब आएगी तो दिल खुलाकर, कौन सा भी मन में डर यहाँ लेने का नहीं। मैं बोलूँगी क्या नहीं बोल पाऊँगी, कैसा बोलूँगी, कितना बोलूँगी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ आने के बाद हमेशा के लिए ये सोचना कि मैं ही एक एक्सपर्ट और नॉलेजफुल लड़की हूँ और मैं ही अच्छा स्पीच दे सकती हूँ। ऐसा आत्मविश्वास के बाद, कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ आना है और हमेशा के लिए यहाँ आकर बातें करना है। कहीं भी अगर आप कश्मीर में भी जाएंगे, आपके कॉलेज में जाएंगी, स्कूल में जाएंगी, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस जागना चाहिए कि जो आपको सरहद ने यहाँ देने की कोशिश की है। मैं अभी सभी बच्चियों को धन्यवाद देता हूँ और उनको आशीर्वाद भी देता हूँ सरहद की तरफ से। आप सबका कल्याण हो, आपको अच्छी सी अच्छी सोच मिले, अच्छा देश के प्रति, समाज के प्रति, माँ और पिता के प्रति अच्छी सोच, अच्छे विचार रखने की ताकत ईश्वर अल्लाह दे। और आप लोग सब यहाँ फिर पधारे, हम आपका हमेशा के लिए स्वागत ही करते रहेंगे। इतना 2 शब्द मैं कहकर अपना ये छोटा सा भाषण यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। I request Vice Principal of Sarhad, Dr. Sangeeta Shinde ma'am, to extend her vote of thanks, please. आदरणीय नाहर मॅम, वाडेकर सर, अनुज सर आणि इथं उपस्थित जे सगळे इंचार्ज आहेत, शिक्षक आणि विद्यार्थी, सबने बताया कि ये कोर्स कैसे शुरू हुआ और उसमें क्या क्या हुआ, ये सब कुछ बताया गया है आपको। तो मैं नाहर मैम की शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने सरहद कॉलेज को ये मौका दिया, हम पे ये विश्वास रखा कि हम ये कर पाएँ। जब मैम ने कहा तो हमने कहा कि हम तो लेते हैं अराउंड 40 कोर्सेज तो हम अपने बच्चों के लिए चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे चैलेंज ऐसा था कि जो कॉलेज के बच्चे हैं उनका एक स्टैंडर्ड है, उनका बेस हमें पता है, उसके बेस पर यह सिलेबस हमने
डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन ये जो बच्चियाँ आई हैं वो अलग माहौल से थी और उनका स्टैंडर्ड भी अलग अलग था। तो उसके लिए हमने सोचा कि पहले उनके साथ बात करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और उनको कहाँ तक आता है, और उसके बेस पर हम सिलेबस डिज़ाइन करेंगे। तो इसलिए हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम लिया, सब बच्चियों से बात की और बात करते वक्त हमें लगा कि हाँ, उनमें एक जुनून है, सीखने की इच्छा है, तो हम सिखा पाएंगे। तो फिर हमने सिलेबस डिज़ाइन किया और यहाँ मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जैसे मैंने मेरे फैकल्टीज़ को बोला कि हमें ऐसा करना है, तो चारों फैकल्टी में से किसी ने भी नहीं पूछा कि क्यों करना है और हम कैसे करेंगे, हमारे सिलेबस का क्या होगा, टाइम क्या होगा, ये कुछ भी सवाल उन्होंने मुझे पूछा नहीं। इसलिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। इसका रीज़न ये है कि ये दिल से सरहद से जुड़े हुए हैं। सिर्फ ये सरहद फैमिली ऐसे नहीं कहते हैं, ये दिल से सरहद से जुड़े हैं और इसकी वजह है नाहर सर, नाहर मैडम, वाडेकर सर और जो हमारे बाकी ट्रस्टी है उनका, क्योंकि उन्होंने इतना हमें जोड़कर प्यार से रखा है। हमें ये लगता ही नहीं कि ये कॉलेज है, ये स्कूल है, या संस्था का काम है या हमारा काम नहीं है। तो उन्होंने इमीडिएट प्रिपरेशन शुरू किया कि हम कैसे कर सकते हैं। और जब प्रिपरेशन शुरू किया और स्टार्टिंग में उन्हें प्रॉब्लम ये आया कि उनको हम डांट नहीं सकते, बच्चे हैं तो उनको डरा सकते हैं, डांट सकते हैं कि नहीं करोगे तो मार्क्स फेल हो जाओगे। इनको डराना नहीं है, डांटना नहीं है, उनको समझना है, उनके हिसाब से इनको चेंज होना था। जनरली बच्चे चेंज होते हैं, लेकिन मेरे स्टाफ के लिए ये चैलेंज था कि उनके लिए इनको चेंज होना था, उनको समझना था कि कैसे इनको समझाए, मोटिवेट कैसे करें। बहुत बार वो कंप्लेन करते थे कि वो लेट आ रहे हैं, तो मैंने बोला कि अलग माहौल में जाके सेटल होने के लिए उनको 8 दिन लगते हैं, हम 2 दिन में उनको क्लास में बिठाया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। या फिर कुछ गर्ल्स जो बीमार हो रही थी तो उनका कैसे कवर करे, ये बहुत चैलेंजेस उनको थे, लेकिन उन्होंने वो सब चैलेंजेस पार किए और आपने देखा होगा कि कितना अच्छा आउटकम मिला है हमें। और इसका पूरा श्रेय इन बच्चियों को जाता है। इन्होंने भी जितना भी बताया कि ये आपको करना है, ये असाइनमेंट देने हैं, फीडबैक देना है, वीडियोस बनाने हैं, हमें नहीं बताया कि क्यों करना है, नहीं करेंगे तो क्या होगा। और ये जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसकी वैल्यू है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट माना जाता है कंपनीज़ में जिसके बेस पर इनको जॉब मिल सकता है, उस हिसाब से उनका वो सिलेबस डिज़ाइन किया है, ड्यूरेशन तय किया है, एग्ज़ाम्स लिए हैं और ग्रेडिंग भी दिया है, ताकि उनको आगे जाकर इसका फ़ायदा हो। तो इसके लिए भी मैं मेरी फैकल्टीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट टास्क था, लेकिन उन्होंने वो अच्छे से किया है। और इसका रीज़न यही है कि नाहर मैम, नाहर सर का प्यार उन्होंने देखा है। और वो जैसे उन्होंने कहा कि उनको हमेशा लगता था कि सरहद का जो काम है, एक्चुअल काम है, उसमें भी हम पार्ट बने। जो बाकी जो कर रहे हैं, वो कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ देयर ड्यूटी एंड दे आर गेटिंग सैलरी फॉर दैट। लेकिन ये जो सरहद का नोबल कॉज है कि हमें समाज में सबको साथ लेकर चलना है। जो हमारे भाई बहन बिछड़े हुए हैं या पीछे रह गए हैं, उनको साथ लेकर चलना है। और उसके लिए अगर साथ लेके चलना है तो हाथ आगे बढ़ाना होगा और उनको साथ लेके चलना होगा। तो ये उनके मन में था, जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये जो कम्युनिकेशन है और ये डिजिटलाइजेशन का कोर्स है, इसमें कंटिन्यूस अपग्रेडेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि हर 4 दिन के बाद टेक्नोलॉजी चेंज होती है और उसके साथ अगर उनको जाना है, इसलिए हमने उनका ग्रुप वैसे ही रखा है, वो ग्रुप वैसे ही रहेगा। आप उसमें आपका जो भी डाउट होगा वो डाल सकते हो, और जब आपको लगेगा हम ऑनलाइन क्लास अरेंज कर सकते हैं। कुछ वीडियोस भी है जो हमारे टीचर्स ने बनाई हुए हैं, वो भी हम लोग आपको शेयर करेंगे। सरहद कॉलेज पे भी वो वीडियोस है, वो लिंक आप देख सकते हो। तो बेझिझक आप
आपके जो भी क्वेरीज है वो पूछो, क्योंकि अभी तो सीखने की शुरुआत हुई है, अभी बहुत आगे जाना है आपको, और उसके लिए आपका और हमारा साथ ऐसे ही चलता रहेगा। तो सबको यही रिक्वेस्ट है कि ग्रुप से कोई भी लेफ्ट ना हो। और एक रिक्वेस्ट है कि आप जब आपकी दूसरी सहेलियों को, छोटे भाई बहन को जो आपने सीखा है वो सिखाओ वहाँ जाकर। जब आप सिखाओगे तो आप वापस एक बार पढ़ोगे और आपका रिवीजन होगा और अच्छे से उनको भी समझ में आएगा। तो इसीलिए आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है। पॉसिबल है गर्ल्स? पॉसिबल है? तो जो बहनें आपकी नहीं आ पाई उनको आपको सिखाना है, और भी कुछ डाउट आता है तो ये चारों टीचर्स अवेलेबल है, उनको भी, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है? तो ये 1 महीने का समय था, इसलिए हमने 2 ही कोर्स किए हैं। आगे अगर मौका मिला, जैसे मैंने कहा 40 कोर्स हमारे पास है, और आपके ज़रूरत के हिसाब से हमारी फैकल्टीज़ अभी इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हैं कि वो सिलेबस स्ट्रक्चर कर पाती हैं, तो वो सिलेबस स्ट्रक्चर करके आपको वो कोर्स दे देंगी। दूसरा, यहाँ पर मैं जाहिद सर, सिराज सर, उनका थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि उनके ही वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। जो भी कम्युनिकेशन होता था क्लास के बारे में, आने जाने के बारे में, क्लास कहाँ होना है, इसके लिए वो हमेशा इन टच रहते थे, और उसी के वजह से सब पॉसिबल है। उसके साथ नॉन टीचिंग स्टाफ जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स को मदद की, जैसे उन्होंने कहा कि काका मौसी ने भी बहुत मदद की, जो प्यार उन्होंने दिया है। जैसे आप जैसे आते हो, आप एक अच्छे से स्माइल पास करते हो, तो उसके वजह से वो भी आपको वैसे ही ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये दोनों तरफ से था, आपने भी बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव किया है, इसलिए उन्होंने भी आपसे अच्छे से बिहेव किया है। यहाँ पर सारे इंचार्ज आए हुए हैं, जैसे कविता मैम आई हुई है, गोले मैम आई हुई है, गीता मैडम, मनीषा मैडम, पल्लवी मैडम, रुबीना मैडम, प्रेरणा मैम, नलावड़े मैडम, विद्या मैडम, कोमल मैडम, स्वाति मैडम और दीपाली मैडम, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इनको सबको बुलाने का ये रीज़न था कि एक सरहद अपना है, कॉलेज कोई एक्टिविटी करे या स्कूल कोई एक्टिविटी करे तो सरहद का नाम बड़ा होना चाहिए, और दूसरे सेक्शंस क्या कर रहे हैं एक दूसरे को पता होना चाहिए। और दूसरी बात, सब सेक्शंस में अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले तो सरहद का जो स्पीड है वो और ज़्यादा होगा, और सर का सपना जो है वो जल्दी हम अचीव कर पाएंगे। इसीलिए अच्छा, जैसे जाहिद सर ने कहा हाथ भी मिलाएंगे गले भी मिलेंगे, वैसे तो हम कभी झगड़ा करते नहीं हैं। अगर आपको उसमें शक है तो अब अभी हम गले मिलकर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब जो गर्ल्स है और जब जो सारे हेड्स है उनके लिए उनके साथ एक गेट टुगेदर लंच भी अरेंज किया है। तो आप सबको इनविटेशन है कि कॉलेज के कॉन्फ्रेंस रूम में आप आइए और खाने का मज़ा उठाइए। इस प्रोग्राम के अंत में हम वंदे मातरम गाना चाहेंगे, तो सबको रिक्वेस्ट है कि आप सब खड़े हो जाए।